Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because she inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because she inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। This is an effort so as to improve on your self confidence, your self development. Before we begin with today's topic, friends, I appeal to all of you that if you love this series, please like, share, and subscribe as it motivates me to create more such content. So let's begin. Today's topic is, friends, you are not behind, you are on your own timeline. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं। मेरा उस समय सब कुछ हुआ नहीं है। You see, you are structured the way you are like. Believe in that. Clear, lyrical, rooted in wisdom, and ready for everything. You see, you are not behind. You are on your own timeline. आपको इस धरती पे किसी पर्पस से भेजा गया है। बस इतना ही ध्यान में रखिए। अब पर्पस क्या है? भाई अपना कर्म करते रहो। What are you worried about? Why are you thinking that कि मैं पीछे रह गया? ये कैसे दिमाग में आता है? It is because many of the times ये घर घर की बातें हर घर में ये बातें होती है. We are all structured in that way. So this is not a good feel good quote. It's a radical shift in perspective. से मैंने कहा कि घर घर की बातें every time we are told a lie, झूठ बोला जाता है. माफ करना लेकिन मैं इसे झूठी कहता हूं. रीजन दैट एवरी सक्सेस हैज अ डेडलाइन. मतलब ये कि बाय 25 साल तुम सेटल हो जाने चाहिए. बाय 30 यू मस्ट हैव अ हाउस. 40 के समय यू शुड हिट योर पिक. इतने साल में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए. इतने साल में तुम्हें बच्चे हो जाने चाहिए. तुम्हारी फैमिली बढ़नी चाहिए. व्हाट नॉट. Let us not go into the biological or scientific part of the family growth. लेकिन यहां तक तो हम ये बोल ही सकते हैं कि इस उम्र में तुम्हारा सेटल होना जाना चाहिए, तुम्हें सक्सेस मिलना चाहिए. तो व्हाई आर यू वरीइंग अबाउट दोस थिंग्स? 30 साल में तुम 30 whenever you are at 30s you should have your own house so that you can pay the EMIs for your for the lifelong. अरे बाप रे, ये कौन सा प्लानिंग है? डेंजरस प्लानिंग है. इसलिए मैं इसे झूठ कहता हूं. बिकॉज हैड वी थॉट कि कुछ नहीं जो तुम्हें पसंद आए, जिससे तुम्हें आनंद मिले, जिससे तुम्हें सर्वाइवल के लिए उत्तेजन मिले, यू शुड डू दोस थिंग्स. Why are we running after money and always in the cage that is formed by the people? क्यों ऐसा है पता नहीं है. ऐसा होना चाहिए क्या पता नहीं है. So this unfolds like एक समय जिंदगी अपने साथ एक मान लो कि म्यूजिकल जैसे फ्लूट बजा रहे या कोई ऑर्गन बजा रहे हो वैसे है. एक इंस्ट्रूमेंट जो नोट उस वक्त प्ले होना है वही प्ले होता है. यू कैन नॉट चेंज दैट. बिलीव मी. क्योंकि उस वक्त उसकी ब्यूटी अलग होती है. योर पाथ, योर पेस, योर डिवाइन डिजाइन आर ऑल डिफरेंट. हर एक का अलग है. यू आर नॉट लेट. You are not early. You are right on time for your life. See, there are so many examples for these things. And I have cited in many of my videos. The best example is of KFC. The person who failed twice by starting a hotel, yet he didn't give up. And after 60 or 65, he became famous for his chicken. Isn't it? So उसका सक्सेस क्या यंग एज में नहीं था. He had gone through all the problems, all the issues.
So take a pause, look around. One person is getting married at 25, another is at 45. होता है ना, अपनी जिंदगी में हम देख रहे हैं। आजकल तो नए नए फंडे फंडे आ गए, बट ये तो हमारे आजू बाजू में हो ही रहा है। One is a millionaire at 30. Another discovers his passion after retirement. ये भी होता है, क्योंकि जिंदगी बीत गई, किसी और के सपने पूरे कर रहे थे, भाग रहे थे, पैसा कमाना है, घर बनाना है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर था। कहाँ लेके जाओगे ये सब? नहीं, विरासत तो दूंगा। ओके, वो कहाँ लेके जाने वाले? और वो कुछ नहीं करने वाले, करने वाले। सो व्हाई नॉट हैव दैट बिलीफ इन योरसेल्फ? मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट ये सोच रख के करोगे कि मैं देरी होगी तो तुम्हारा ये जो सपना है ये तो रह ही जाएगा ना, कैसे होगा? सो द प्रॉब्लम arises when we treat life like a 100-meter race. भाग रहे सब, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग विथ लेन्स। मेरे साथ कौन भाग रहा है, वो आगे है कि पीछे है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं पीछे तो नहीं हूँ, है? क्यों सोच रहे हो? वो उसकी दौड़ दौड़ रहा है, वो तुम्हारी दौड़ नहीं दौड़ रहा है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर टैलेंट, वेस्टिंग योर स्किल्स विच आर नॉट एक्सप्लोर्ड एट ऑल। इसी कारण, क्योंकि आप ये सोच रहे हो नहीं मैं लेट हो गया, वो तो आगे निकल गया, अभी क्या करना है? अरे वो आगे निकल गया, जाने दो, उसका समय था, शायद तुम्हारा समय अभी शुरू हो जाए। यू नेवर नो, इसलिए कहा कर्म करो। सो देयर इज नो सोसाइटीज अप्लॉज फॉर यू, ओके, नॉट इट्स एक्सेप्टेड ना, क्या उसमें बड़ी बात क्या है? उस वक्त मुझे कई जिम्मेदारियां थी, कई प्रेशर्स थे, मैंने सॉल्व किए, तो मेरे कुछ सपने पीछे रह गए। इसका मतलब ये नहीं मैं पीछे रह गया, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो देरी से होंगे। सो यू आर नॉट बिहाइंड, you are just on the different journey. That's not failure. That's freedom of thought, of process, of belief. Once you internalize this truth, your self-worth stops depending on what others are doing. अभी तक क्या था, कंपैरेटिव मोड पे थे, अरे उसका हुआ क्या, इसने क्या किया देखो, उसका कैसे हुआ देखो। क्यों देखना है? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें तय करना है। Then never ask in your life what you have to do in your life to others. Never. Otherwise, you will be walking his wishes, not what you wished for. So the comparison trap fades. Instead of why I'm not there yet, वो चला गया, मैं क्यों नहीं पहुंचा, नहीं, ये नहीं है। You begin asking, what can I do today that aligns with my purpose? मेरा पर्पस क्या है जिंदगी का? कुछ तो होना चाहिए ना, गोल होना चाहिए ना जिंदगी में, या ऐसे ही चल रहा है? पता नहीं। अगर ऐसे ही चल रहा है तो दैट इज डेंजरस। वी हैव सेट अ गोल। आई हैव गिवन अ वीडियो ऑन माय पर्सनल जर्नल आल्सो। आई विल मेक अ repeat video of that. It's one of the important videos, friends. You should have that. So confidence grows when, not when you beat others, no, but when you stop needing to beat others. दूसरों को हराने में कोई मजा नहीं है, तुम्हारी जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत तभी होगी जो मन में आएगा कि हाँ यार, तसल्ली आ गई कि मैं ये जीत गया हूँ। मुझे इसमें अगर तसल्ली आ रही कि मैंने उसको हरा दिया, नहीं, उसकी जरूरत नहीं, वो उसकी तकदीर है, वो उसको करने दो। सो when you own your timeline, you stop apologizing for being late. तो कभी नहीं बोलोगे देरी से हो रहा है, अभी का क्या मतलब है, अभी करके क्या करोगे? ये सवाल ही एब्सर्ड है। You start celebrating how far you have come. That quiet pride, that's the birth of unshakable confidence. अब जब तसल्ली आ गई कि सारी जिम्मेदारियां निभा चुका हूं, तो अब मैं थोड़ा अपनी तरफ भी देख सकता हूं। ये विचार जब आने लग जाए तो हर सक्सेस आपका आनंद द्विगुणित कर देगा। सो दिस शिफ्ट इन माइंडसेट
इज फ्यूल फॉर ग्रोथ, तभी ग्रोथ हो पाएगी ना। बिकॉज वेन यू बिलीव यू आर नॉट लेट, यू आर नो लॉन्गर इन अ पैनिक मोड। अब जल्दी नहीं है, ठीक है लेट हो गया, अरे अभी कर सकता तो अभी किया, तब कर सकता तो तब कर देता। दैट वे इफ यू अंडरस्टैंड द लाइफ, then you are not in a panic mode. You make choices with calm, clarity, not fear. अरे उसे आ रहा है, वो चला जाएगा आगे, नहीं तो समय नहीं बचेगा, उसको जाने दो, मेरा समय शायद अभी आ गया हो। दैट इज व्हाट यू शुड थिंक ऑफ। सो यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू लर्न, एक्सप्लोर, मेक मिस्टेक्स। कोई अगर इंसान आपको ये बोला है कि मैंने जिंदगी में कोई गलतियां की नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। Because to explore yourself, life is posing challenges, and to face those challenges you are exploring your skills and potentials. Now if you are wasting your time comparing with others, saying that you are late and abhi nahi ho sakta, then what are you doing? You are moving towards stagnation. तो गलतियां कहाँ हो रही है? तुम्हारे यहाँ हो रही है। किसने की? तुमने की। क्यों? क्यों तुमने काम ही नहीं किया। क्या काम नहीं किया? खुद के ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे किसी को बोलने की क्या जरूरत, तुम अपना कर्म करो। Why are you worried? उसके घर में क्या हो रहा है, होने दो। You see, he is not wasting time comparing his progress with you. You are wasting your time. So you should embrace that I am figuring it out how to do the things, and that's okay, friends. This mental shift makes space for patience, discipline, and deep transformation. Self development isn't a sprint to impress, it's a lifetime blooming in your own season. दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्लावर्स के हर एक के सीजन होते हैं ना, फ्लावर्स फ्रूट्स के। वैसे ही आपका सीजन कब आएगा, ओके आएगा। बट इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इन कंपेयरिंग विद अदर्स, देन आपके सीजन बढ़ता ही जाएगा, समय बढ़ता रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हियर यू आर बिहाइंड, यू आंसर विद ट्रूथ, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी। द यूनिवर्स इजंट रनिंग आउट ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस उम्र के बाद भगवान अपना ब्लेसिंग देना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान अपना अपना काम करता रहता है, तुम अपना अपना काम करते रहो, लेकिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब, जिसे हम जो बिलीव करता है उसके लिए, अगर वो बिलीव ना भी करता हो फिर भी उसे कर्म करने हैं। दैट इज व्हाट द रिजल्ट्स आर। जो करोगे वही तो आएगा ना। सी व्हेन यू आर, इट इज अ वेरी गुड सेइंग, you reap what you sow. So your story is still being written. हो सकता है लिख रहे हैं तो लिखो। Some flowers bloom in the spring, some in the autumn, but each in its own divine rhythm. हर एक इतना अच्छा दिखता है। Tulip, rose, different flowers blooming in different seasons, but we love both. That's the interesting part. The race was never real. उन दोनों में कभी रेस हुई नहीं थी, तो हम क्यों कर रहे हैं पता नहीं। Because by habituated, we are all habituated in comparing ourselves with others. मेरा इतना तो उसका कितना, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? That is a common phrase. Why are you worried? You should be worried about yourself only. Hence, ये जो लेट हो रहा है, क्या मेरे पास नहीं है, क्या मुझे मेरे पास क्यों नहीं है, ये सारे जो सवाल आ रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि द प्रेशर वॉज नेवर यूअर्स। वो तुमने क्रिएट किया हुआ था, यू ब्रॉट इट। वो तुम्हारा था ही नहीं, भगवान ने तुम्हें सही टाइम में भेजा है, सही टाइम से तुम्हारा चल भी रहा है, लेकिन तुमने कंपैरिजन करके वो प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। अब क्या कर सकते हैं? उसमें क्या हो गया कि आपका भी नुकसान हो गया, वो समय भी चला गया, और आपके स्किल्स एक्सप्लोर होने से रहे, बिकॉज तुम्हारा सारा काम, सारा मेंटल थॉट प्रोसेस उसी में चला गया। वो क्या कर रहा है? क्योंकि वो आगे ना चला जाए, मुझे उसके आगे जाना है, तो कितना प्रेशर लेके करोगे? सो यू आर नॉट बिहाइंड फ्रेंड्स, यू आर ऑन योर ओन ब्यूटिफुल, ब्रिलियंट, ब्लेस्ड टाइमलाइन। भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा, यही सबसे बड़ी बात है। कर्म अच्छे होने चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, दैट्स वेयर द मैजिक हैपन्स। बिलीव करते रहोगे खुद पर,
और अपना काम अपने लिए मतलब आप फैमिली बोलो, अपने जो भी आप कर रहे हो उनके लिए दो. Whenever you are doing the things, you realize the happiness that is getting shared and multiplied. So believe that you are not late. You are exactly at the same time and the when it is required to be. So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers because she inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.